Hello students, the second chapter of class 11th is biological classification. Biological classification is a scientific process of classifying the organism based on their similarities and differences and placing the groups into the hierarchical classifications. Kingdom system of classification. First attempt of classify the living organism is done by Aristotle. He classified the living organism into two groups, plants and animals. His classification was based on only morphological characters. Morphological characters means external appearance of the organism. Plants further divided into herbs, shrubs and trees, and animals divided into anima and inanima. Anima means animals without RBCs and inanima means animal having RBCs. Linnaeus later classified all living organisms into two groups, Plantae and Animalia, same as Aristotle. The criteria of classification used by him: first salvol, second locomotion, third is mode of nutrition, fourth response to external stimulus, fifth is contractile system, sixth is organisms. फर्स्ट है सेलवॉल. प्लांटी में सेलवॉल प्रेजेंट है, एनिमेलिया में सेलवॉल एब्सेंट है. ये क्लासिफिकेशन फीचर फर्स्ट लिया उन्होंने. क्लासिफिकेशन का जो फीचर था. सेकंड है लोकोमोशन. लोकोमोशन प्लांट्स में एब्सेंट है और एनिमेलिया में प्रेजेंट है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में प्लांट्स ईट नहीं करते, ऑटोट्रॉफिक करते हैं, और एनिमल्स क्या करते हैं, ईट करते हैं. रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स इनका स्लो है प्लांट्स का, और एनिमल्स का क्या है, फास्ट है. कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इनमें एब्सेंट है और कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इनमें प्रेजेंट है. ऑर्गेनिजम्स इनमें प्लांटी में कौन कौन से इंक्लूड किए हमारे लिनियस ने? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, सेरेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और ये सारे इसने प्लांटी में इंक्लूड किए. और एनिमेलिया में इंक्लूड किए प्रोटोजोन्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. द क्लासिफिकेशन, द क्राइटेरिया भी हमने देखा कि एरिस्टोटल ने के बाद जो हमारे लीनियर्स आए उन्होंने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो यूज किया: सेलवॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स. Two kingdom of classification does not distinguish between the unicellular and multicellular, eukaryotes and prokaryotes, and photosynthetic and non-photosynthetic. So later on it was discarded. Three kingdom classification was given by Haeckel, and he classified the living organism into three groups: Protista, Plantae and Animalia. Protista includes unicellular microorganism, fungi, protozoa, algae, bacteria and slime molds. Later on, four kingdom classification was given by Copeland. Four kingdoms are Monera, Protista, Plantae, Animalia. Monera includes all prokaryotes, Archaebacteria, Eubacteria and Cyanobacteria. This is the history of biological classification, and later on given by five kingdom classification. Five kingdom classification. R.H. Whittaker. R.H. Whittaker. That was approved by all the scientists. Five kingdom classification was given by R.H. Whittaker. The five kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The classification was based on characters, cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization, mode of nutrition. Monera is prokaryotes, Protista is eukaryotes, Fungi is eukaryotes, Plantae is eukaryotes and Animalia is eukaryotes. Cell wall, मोनेरा में प्रेजेंट है सेल वॉल, और नॉन सेलुलोजिक है, पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनी है सेल वॉल. और प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंस है, फंजाई में प्रेजेंट है लेकिन सेलुलोज नहीं है सेल वॉल में. प्लांटी में प्रेजेंट है और सेलुलोज की बनी हुई है सेल वॉल. एनिमेलिया में एब्सेंट है सेल वॉल. थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है, एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है. एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा का सेलुलर है, मतलब बॉडी में सेल्स से बने हैं ये, और प्रोटिस्टा वाला ऑर्गेनिज्म भी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी सेल्स से बने हैं.
और फंजाई जो है मल्टी सेलुलर है, बहुत सी सेल्स प्रेजेंट है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है और लूज टिश्यूज़ प्रेजेंट है। प्लांटी के अंदर टिश्यू और ऑर्गन्स प्रेजेंट है और एंड एनिमेलिया के अंदर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी मिलता है और हेटरोट्रॉफिक भी मिलता है। ऑटोट्रॉफिक में दोनों है, फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है। फोटोसिंथेटिक मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। कीमोसिंथेटिक मीन्स ये केमिकल्स मतलब नाइट्रेट्स, अमोनिया और नाइट्राइट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासिटिक है, किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक है और हेटरोट्रॉफिक दोनों टाइप का है और ऑटोट्रॉफिक में ओनली फोटोसिंथेटिक टाइप का है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म। फंजाई में हेटरोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट्स है, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, लेते हैं। और पैरासिटिक है, किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं फंजाई। प्लांटी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक है और फोटोसिंथेटिक है। एनिमेलियम में हेटरोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक में है होलोजोइक। प्लांट्स तो सारे सनलाइट की प्रेजेंस में खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। एनिमल्स जो हेटरोट्रॉफिक है, होलोजोइक है और सेप्रोफाइट है, फूड एनगल्फ करते हैं कंप्लीट। और सेप्रोफाइट मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन के बेसिस हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि विक्टेकर ने दिया था और जिसे अप्रूव्ड किया गया। Now we will see the characteristic feature of kingdom Monera. स्टूडेंट्स आप नोट्स बना सकते हैं बोर्ड से, आप पॉज कीजिए और नोट्स बनाइए। पॉइंट वाइज अरेंज है ये। फर्स्ट कैरेक्टर है, ये जो किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं यूनिसेलुलर है, मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक हैं और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन और स्टोन प्रोटीन्स जो हैं एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। सेकंड फीचर है ना, इनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है डीएनए से, आरएनए से और नॉन स्टोन प्रोटीन से बना है और डीएनए जो है इनका सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है। सेल वॉल जो है इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन मीन्स है अमीनो एसिड्स प्लस शुगर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन इनमें एब्सेंट है क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उनमें सेल ऑर्गन्स नहीं मिलते, न्यूक्लियस नहीं मिलता, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम्स जो है इनमें वो कौन से टाइप के हैं, ओनली 70S टाइप के राइबोसोम्स इनमें प्रेजेंट हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मोनेरा में जो आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा के अंदर और बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर हेटरोट्रॉफिक हैं, लेकिन कुछ ऑटोट्रॉफिक भी मिलते हैं इसमें। रिप्रोडक्शन जो है मोनेरा में वो एसेक्सुअल टाइप का मिलता है और बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन दिखाते हैं। Next, respiratory enzymes are present on plasma membrane in bacteria. बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और हमारे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप के बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है स्फेरिकल कोकस, राउंड शेप के जो हैं उन्हें हम कहते हैं सिंगल कोकस और उनकी प्लूरल है कोकाई। एंड सेकेंड, रॉड शेप के जो है बैक्टीरिया हैं उनको हम कहते हैं सिंगल को बैसिलस और प्लूरल है इसका बैसिलाई। थर्ड है हमारा कॉमा शेप, जो कॉमा शेप बैक्टीरिया हैं सिंगल है विब्रियम और इसका प्लूरल है हमारा विब्रियो। एंड फोर्थ इज द स्पाइरल शेप का जो है स्पाइरिलम सिंगल एंड जो प्लूरल है वो उसका है स्पाइरिला। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन शेप के बेसिस पर स्पाइरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप विब्रियम एंड द स्पाइरल स्पाइरिलम।